Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. So this is an interactive edition of Market Mantra. So feel free to ask us your questions. Do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Ambarish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और आज हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम आपको याद दिला दें कि हम इस कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित है बाजार विश्लेषक शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हेडलाइंस लेके मौजूद हैं वी रवि कुमार। Government withdraws export duty on steel with immediate effect. Brent crude futures tanks 9% during the week, and on Wall Street the Dow rises 0.6% as investors shrugged off hawkish comments from Federal Reserve. सरकार ने इस्पात पर लगा निर्यात शुल्क आज वापस ले लिया। ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल का फ्यूचर मूल्य सप्ताह के दौरान 9% गिरा और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तीखी टिप्पणियों को निवेशकों द्वारा नजरअंदाज करने के बाद वॉल स्ट्रीट में डाउ 0.6% बढ़ा। और आज की पहली खबर, सरकार ने इस्पात पर लगा निर्यात शुल्क आज से वापस ले लिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने इस वर्ष 22 मई से पहले की स्थिति फिर से बहाल कर दी है। सरकार ने 58% लौह तत्व से कम लौह अयस्क पिंडों और बुरादे, लोहे के छर्रों और कच्चे लोहे सहित विशिष्ट इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क वापस लिया है। एंथ्रासाइट, कोयले, कोकिंग कोल, कोक और सेमी कोक तथा फर्निकल पर भी आयात शुल्क रियायतें वापस ले ली गई हैं। इन उपायों से घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात बढ़ेगा। Shishir, this seems to be welcomed by the entire steel industry. That's the response that we've seen. How important is this? Because we've seen in October, we saw almost a 66% dip, which is the highest in this fiscal in the export. So how do you see this particular measure? How important is this? When we talk about the steel industry, there are two components. One is the global market and the second one is the domestic market. If we are in a position to supply to both the market, domestic as well as the global market, that would be better. And what we were seeing during the month of May, it was more of the export and the prices were going up. But after that, we saw a reduction in the prices and also saw that domestic industries were facing a lot of problem because they had the capacity. They were producing steel, but they were not able to get the proper consumption at the domestic market. So the only option was going to the international market. But since the price in terms of export prices were higher because of the higher duty, so they were not in a position to sell their product in the international market. Now the expectation is that they will be able to sell their product in domestic as well as in the international market, and it is also going to benefit their balance sheet, because the balance sheet, if you see the first quarter number as well as the second quarter number of all the steel producers, they were in a very bad situation. Hopefully the things will improve during this quarter as well as the coming quarter. Okay. और इस बीच दिल्ली से हमारे श्रोता गौतम हमसे जुड़ चुके हैं। गौतम नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
आप सबको नमस्कार। नमस्कार जी। और सवाल मेरा थोड़ा सा यूं है कि इंडिया प्लस वन की हम बात करते हैं तो इंडिया प्लस वन में हमारे पास ऑप्शन है इंडिया में कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बढ़ा सकें और अपने मतलब चाइना के कंपैरिजन में हम स्ट्रांग हो सकें इकोनॉमिकली वाइज। बट द पॉइंट इज कि कंट्रीज लाइक वियतनाम, ताइवान, साउथ कोरिया ये भी इस रेस में चल रहे हैं और हमसे काफी आगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। नाउ हमारी सरकार भी पॉलिसीज ला रही है, बट क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन बिटवीन दी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और यू कैन से बिटवीन एजेंसीज, क्या हमारी इम्प्लीमेंटेशन उतनी इफेक्टिव रह पाएगी कि हम पिछड़ ना जाएं उस रेस में, एटलीस्ट फर्स्ट या सेकंड पोजीशन बना के तो थर्ड पे तो आए। सेकंड सवाल जो उससे मिलता जुलता वो कुछ यूं है कि बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम है, नाम लूंगा सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, जस्ट रेफरेंस, आपको आंसर नहीं देना, लेकिन उससे जुड़ता हुआ है। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे इंडिया में स्टैब्लिश करी है, बट इनका कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमें इनके प्रोडक्ट की प्राइसेस में नहीं मिलता। तो ये कॉस्ट बेनिफिट हम इंडियन कस्टमर्स को कब तक मिल सकता है ऐसी कंपनीज से? थैंक यू, दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच। अगर मैं इनका पहला सवाल लूं, जहां पर ये बात कर रहे हैं कि वियतनाम या दूसरी जो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं उनके मुकाबले में हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे या जो नीतियां हम बना रहे हैं उनका नतीजा कब मिलेगा, मुझे लगता है कि कुछ असर दिखना शुरू हो गया। और एक और जो सबसे बड़ी फायदे की चीज है कि हमारे यहाँ जो इंग्लिश स्पीकिंग लेबर है वो काफी हद तक इस चीज को सपोर्ट करता है, क्योंकि वियतनाम और बाकी जो दूसरे देश थे उन्होंने कुछ समय पहले कदम उठाए तो उनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, लेकिन अब वो एडवांटेज जो है वो काफी हद तक शिफ्ट हो रहा है। और जैसा कि उन्होंने जिन कंपनियों के नाम लिए उन कंपनियों के प्रोडक्शन और असेंबलिंग प्लांट जो है वो हिंदुस्तान में शुरू हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 सालों में आप मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो एक प्रेफर्ड, जिसको हम लोग कहें कि प्रेफर्ड हम डेस्टिनेशन बन पाएंगे ग्लोबल लेवल पर। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि जो प्रमुख कंपनियां हैं जो हैंडसेट बनाती हैं उनके प्रोडक्ट के प्राइसिंग में हमको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखिए, इसमें आपको एक चीज समझना होगा। एक तो यह है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल की जहां तक बात है, जो चाइना जिस चीज का एडवांटेज लेता रहा है हमेशा से, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल का लेता रहा है। हम अभी उस इकोनॉमी ऑफ स्केल पे नहीं है और इसकी वजह से आपको कीमतों में उस तरह का बदलाव होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। दूसरा क्या है कि जो रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट्स है, वो अभी हम मैक्सिमम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके अपने कॉस्ट हैं। तो जैसे जैसे इनके भी प्रोडक्शंस यहां पर शुरू हो जाएंगे, इकोनॉमी ऑफ स्केल इंप्रूव होगा, तो आप देखेंगे कि इन प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है, ये जो आपको चीन से जो मिलता रहा, उस तरह के बेनिफिट आप हिंदुस्तान में भी देखेंगे। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम दिल्ली। JS Saluja is online with us. Saluja sir, welcome to Market Mantra. Please put your question. Good evening, everybody. Good evening. My question is that due to increase in raw materials, one of the listed footwear company, what it has done is that it has taken hit on its margins, not increasing the price, in the hope that the competitors will, one day vanish. So I just want to know your opinion on this, whether really the competitors will vanish or we should, continue investing in this company. Thank you. If I understand correctly, he's talking about footwear sector. And we know the stock, but we'll not take the name. I'm not going to talk about any specific stock or any specific company. But what was happening before January 1, 2022, there was a structure called inverted duty structure in the footwear sector as well as in the textile sector. So the GST Council decided to remove the inverted duty structure for the footwear sector. What is inverted duty structure? When you have a lower duty on the raw material and, I beg your pardon, high duty on the lower raw material and lower duty on the finished product. So after January 1, what is happening that the footwear industry, they increase the prices. But many of the companies, they didn't increase that much because of competitive pressure and because of some other reasons. So they may be in some kind of trouble, but I can assure you that when the inverted duty structure, removal of inverted duty structure will have a positive impact and the volume will increase, that particular company will also get some kind of advantage and they will also be in a position to face the competitor in a better way. और दिल्ली से हमारे श्रोता मुकेश लाइन पे हैं। मुकेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर, मेरे पास में विप्रो के 107 शेयर्स हैं 416 की बाइंग पे। मुकेश जी, हम स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी आपकी आंसर नहीं कर पाएंगे, अगर आपका जनरल कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। ओके, तो फिर मैं आईटी सेक्टर्स के बारे में जानना चाह रहा था कि आईटी सेक्टर्स कब तक बूस्ट अप आ पाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा आईटी सेक्टर्स डाउन हैं।
तो वो कब तक बूस्टअप हो पाएंगे? देखिए मुकेश जी, इसमें इस समय में आप अगर गौर कर रहे होंगे तो अमेरिका में एक माइल्ड रिसेशन की सिचुएशन है। यूरोप और यूके ये दोनों ही रिसेशन में आ चुके हैं। तो अगर जब तक यूरोप, यूके और यूएस में सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है तो आईटी सेक्टर पर एक प्रेशर बना रहेगा। एक एडवांटेज जरूर है वहां पर कि जब आप आईटी सर्विसेज का आप एक्सपोर्ट करते हैं तो रूपी के डेप्रिसिएशन से उस पर फायदा जरूर मिलता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जब आपका आईटी एलोकेशन कम हो जाता है तो उसका असर डोमेस्टिक कंपनीज पे, चाहे जो भी नाम आप ले रहे हैं या जो भी दूसरी कंपनीज है उनके ऊपर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने से लेकर के 12 महीने का वक्त अभी भी आईटी सेक्टर के लिए चैलेंजिंग होगा। यूएस में माइल्ड रिसेशन अगले साल के मध्य तक उम्मीद है कि शायद थोड़ा सा उसका असर कम हो। यूके में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है लेकिन अभी भी वहां रिसेशन की सिचुएशन है। ये तीनों मार्केट जब तक इंप्रूव नहीं करेंगे आईटी सेक्टर पर एक प्रेशर जो है वो बना रहेगा। Next caller is a regular caller from Ghaziabad. Gaurav is online with us. Gaurav, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Gaurav, you are not on a clear line. We'll request you to please call again because we're not able to hear you clearly. Please try again. Another regular caller from Thane, Gurunath, is online with us. Gurunath, welcome to Market Mantra. Please put your question. जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। शिशिर सर को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन था, जो हमारा जो टूरिज्म है, पर्यटन विभाग, सर हमारे देश में तो हमारा देश तो बहुत बड़ा है और अच्छे अच्छे देखने लायक डेस्टिनेशन है। तो सर ये मतलब जो हमारा जो पर्यटन विभाग है तो ये इसके लिए मतलब बाहर के मीडिया में मतलब वहाँ के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मतलब क्या कार्यक्रम चलाती है क्या गवर्नमेंट? और इसमें सर और मेरा एक सवाल है, हमारे जीडीपी में ये जो टूरिज्म का कितना प्रतिशत हिस्सा है और एग्रीकल्चर का कितना हिस्सा है? थैंक यू सर। गुरुनाथ जी, अगर पहला आपका प्रश्न का जवाब दूं कि जहां तक पर्यटन की बात है तो भारत सरकार की ओर से कई ऐसे कार्यक्रम जो है वो विदेशों में चलाए जा रहे हैं और उसका हमें फायदा भी दिखा है। देखिए, ये बात तो हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि बीते 2 वर्ष हमारे लिए कठिन रहे हैं कोविड की वजह से, और इंटरनेशनल टूरिज्म जैसे रिज्यूम हुआ है, दोबारा बहाल हुआ है, उसका असर पर्यटन पर भी देखने को मिल रहा है। आप अगर होटल की ऑक्यूपेंसी देखें वो काफी बढ़ गई है, आप अगर इंटरनेशनल अराइवल देखें वो काफी बढ़ गई है, तो बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन हाँ, अभी कुछ समय और लग सकता है जहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो असर जो अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका देखने को मिलेगा। टूरिज्म का जो जीडीपी में शेयर है, इसको हम अकेले टूरिज्म के तौर पर नहीं देखते, क्योंकि टूरिज्म जो है वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि कई उद्योग को उस पे उसका असर देखने को मिलता है। चाहे वो आप अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, हॉस्पिटैलिटी पूरे इंडस्ट्री की बात करें, तो टूरिज्म एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर है और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। एग्रीकल्चर की जहां तक बात है, कृषि की जो हिस्सेदारी थी जीवीए में, जिसको हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, उसमें बीते दिन उसमें 20% तक उसकी हिस्सेदारी पहुंच गई थी। अब उसमें कमी आई है, करीबन 17-18% पर है। ये भी इसे आप कह सकते हैं कि क्या ये पर्याप्त है? अगर आबादी की जो निर्भरता है कृषि पे उसको देखें, श्रम की जो निर्भरता है कृषि पर देखें, तो उसके हिसाब से ये हिस्सेदारी आपको कम दिखेगी। इसकी बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन ये हिस्सेदारी और बढ़ाने की जरूरत है। और गाजियाबाद से हमारे श्रोता गौरव लाइन पे हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा सवाल डिविडेंड इनकम को है। शेयर से जो डिविडेंड में इनकम आती है वो उसकी डिविडेंड टैक्स कैसे होते हैं? क्या वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स की स्लैब में जुड़ जाते हैं क्या? और दूसरा सवाल, अगर ब्लू चिप के सबके शेयर है, क्या 1 करोड़ सपोज किसी का इन्वेस्टमेंट है, तो थंब रूल क्या है कि करीब 1% या 2% साल में उसकी इनकम होती है? इसके ऊपर थोड़ा अगर आप जिस थंब रूल कितनी इनकम हो सकती है डिविडेंड की 1 करोड़ का, अगर किसी के पास ब्लू चिप इक्विटीज हो? थैंक यू। देखिए, दूसरे सवाल का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है कि कितनी कमाई होगी अगर आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ के जितने के भी आपके पास सो कॉल्ड जो हम लोग जिसको ब्लू चिप शेयर कहते हैं, तो ये शायद बहुत अटकल लगाना होगा कि आपको 2% की कमाई हो सकती है, क्योंकि किसी वर्ष अगर अच्छे नतीजे हैं तो अच्छे डिविडेंड मिल सकते हैं, नतीजे अच्छे नहीं रहे तो आपको डिविडेंड शायद ना मिले। तो इसलिए वो अटकल लगाना बेहतर नहीं होगा। रहा सवाल कि पहला जो आपका प्रश्न था कि इंश्योरेंस कंपनी से अगर मैं समझ पा रहा हूं, शेयर के डिविडेंड की बात कर रहे शेयर के डिविडेंड की बात कर रहे थे, तो शेयर के डिविडेंड में जो रूल है कि डिविडेंड टैक्सेशन इन द हैंड्स ऑफ जो शेयर होल्डर है, उसका रूल रेगुलेशन काफी हद तक चेंज हो चुका है। तो अब आपके लिए है कि एक निश्चित रकम तक आपके पास डिविडेंड आती है तो आपको उस पर टैक्स नहीं है, एक निश्चित रकम के ऊपर है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
Vineet from Rohtak is online with us. Vineet, welcome to Market Mantra. Please put your question. नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल पूछें सर। कहना था कोई इकोनॉमी जो बाहर इन्वेस्ट करती है तो उस इन्वेस्टमेंट को जीडीपी से अलग रखा जाता है या उसी में इंक्लूड किया जाता है? देखिए, जहां तक कोई भी देश जो है वो निवेश करने का दो तरीका होता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे देशों के सोवरेन वेल्थ फंड होते हैं जो कि सरकार के द्वारा प्रायोजित होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो उसको वहां पर इन्वेस्ट करती है। जब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें आप देखिए शब्द क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब है कि एक डोमेस्टिक बाउंड्री के भीतर जो भी वस्तु और सेवाएं हैं, वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा है और जो सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं, उसके जरिए जो आपके कीमत आपको मिल रहा है वो आपकी जीडीपी, और अब हम लोग उसमें जीवीए के तौर पर हम लोग देखते हैं। रहा सवाल कि उसका आप किस तरीके से देखते हैं, तो वो आपका होता है कि रेमिटेंस आपके, यानी कि जो रिजर्व बैंक के पास डॉलर आ रहा है वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है, उसके बढ़ने से फायदा होता है कि उसका असर आपके रुपए पर देखने को मिलता है। तो ये आपको जीडीपी का, और जो बाहर के देशों में आपका पैसा लगाता है वो प्राइवेट सेक्टर के अपने निवेश हैं, उनका एक अलग तरीके से आकलन है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम एक डोमेस्टिक बाउंड्री के भीतर गुड्स एंड सर्विसेज का एक सर्टेन पीरियड में जो उत्पादन होता है उसकी कीमत देखते हैं। और ग्रेटर नोएडा से हमारे नियमित श्रोता एसपीएस जैन जी लाइन पे हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी, मार्केट टीम को नमस्कार सभी। फर्स्ट इज क्लैरिफिकेशन, डिविडेंड शेयर के ऊपर जो मिलता है उसके ऊपर जो इनकम टैक्स है उस पर कोई माफी नहीं है, पूरा ही पैसा आपकी रेगुलर इनकम में जुड़ेगा और स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब मेरा सवाल यह है कि क्रूड ऑयल काफी तेजी से घटा है और अभी आपने बताया 10% के करीब घटा है, इसमें क्या जो सोवियत रशिया से इंपोर्ट हो रहा है उसका भी असर है? और मेरा यह है कि इसका इफेक्ट डाउन द लाइन जो कंज्यूमर को कब फायदा होगा इसका? देखिए, चीन के जो मांग थी, चीन के मांग में जो कमी आई है उसका असर हमें क्रूड ऑयल पर देखने को मिल रहा है, जबकि ओपेक ने ये फैसला किया था, ओपेक प्लस ने, कि हम क्रूड का प्रोडक्शन कम करेंगे, लेकिन चीन से जो मांग आनी चाहिए थी, जो उम्मीद थी, वो कमी आई है क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा हमने गिरावट देखी है, तो उसकी वजह से क्रूड की कीमतों में उस तरीके की बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिल रही है। भले ही आप जो देखें कि जो उत्पादन है, कुल उत्पादन जो ओपेक प्लस का है उसमें उन्होंने कमी करने की बात कही है, तो मुझे लगता है कि अभी ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो आपने पूछी है कि इसका फायदा ग्राहकों को कब तक मिलेगा, तो एक कमी जो है कुछ दिन पहले की गई थी, आगे चल करके हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले एक महीने में अगर $90 प्रति बैरल के नीचे आ जाए तो शायद हम उम्मीद करें कि एक और कटौती जो है वो मिलेगी। कब होगा, कैसे होगा, ये कहना भी थोड़ा सा जल्दबाजी है। Next caller is from Mumbai. Ratnakar is online with us. Ratnakar, welcome to Market Mantra. Please put your question. गुड इवनिंग सर। Good evening. हाँ, मेरा सवाल है कि मेरे एक रिश्तेदार है, उनका इन्वेस्टमेंट 15 to 20 लाख का है शेयर्स में, और उसका मार्केट वैल्यू 40 लाख तक है समझो। तो उन्होंने क्या बोलते हैं वो कि मैं डिविडेंड लेता हूँ लेकिन जो शेयर बड़े हैं वो मैं बेचता नहीं हूँ। मैं बोला ऐसा क्यों, प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करने से आपको उसका फायदा हो जाएगा। तो ऐसा उनका कहना है कि नहीं, मैं बेचता नहीं हूँ, मैं खाली डिविडेंड लेता हूँ। तो ये उनकी राय सही है क्या इसके बारे में? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है क्योंकि कोई आदमी शेयर बाजार में क्या करता है ये उसके व्यक्तिगत तौर पे, और बहुत कुछ निर्भर इस बात पर भी करता है कि उनके तमाम जो एडवाइजर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, उनको क्या राय देते हैं। हो सकता है कि उनको जो डिविडेंड से आय मिल रही है वो उससे संतुष्ट हैं और उनको लगता होगा कि शायद कीमतें अभी और आगे बढ़ेंगी तब वो जाकर के बेचेंगे। किस हद तक बेचेंगे ये उनका व्यक्तिगत फैसला होगा। तो अब उनकी राय सही है या गलत है ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत मामला है। इसे हम एक टेम्पलेट के तौर पर नहीं कह सकते हैं कि आपको डिविडेंड पर निर्भर रहना चाहिए या बाजार में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। But you should hypothetically, if somebody is sitting on, let's say, 100% profits and he's getting a dividend at a certain rate, does it make sense to sell all those stocks and buy it back immediately and book those in terms of books? Because now we have that 1 lakh rupees capital gains also every year that you can get. More than 1 lakh you have to pay the capital gains. But if it's within 1 lakh, you can sell and book that as a tax-free income and then again reinvest in the same stock. See, it all depends upon that how you are preserving your capital.
the most important thing is in the stock market is that one is preserving the capital, the original capital. If you have invested say 100 rupees, your first target should be to protect that 100 rupees. And over and above the 100 rupees, every rupee is a profit for you, apart from the dividend. So when you are seeing market in a situation where you are getting an opportunity to book the profit, you should go for that. But my advice would be that the first you think about the capital, the original capital which you have done it. The second thing is that whether you are going for averaging the overall price, that is very, very critical. And the third thing is that if you need cash at this moment and if you are finding something more attractive avenue, then you should go for that. So there are the three conditions. One, the protecting the original capital. The second one is when you are going for the averaging. And the third one is that when you are going for the attractive avenue, or when some stocks are much, much better or giving a better price, then you should go for that. Right. Mr. SPS Jain has already stolen our thunder and spoken about oil, but let's cover oil as well. Falling for the second straight week, global crude oil slumped about 10% during the week due to concern about weakened demand in China and further increases to U.S. interest rates. So the Brent crude futures tanked 9% during the week to close the week at $87.62 a barrel. The U.S. crude futures ended the week at $80.08 a barrel, plunging about 10% during the week. And since we've already discussed this, let's go straight across to our next caller, who is from Delhi. Bharat Bhushan is online. Bharat Bhushan ji, welcome to Market Mantra. Please ask a question. जी मार्केट मंत्र टीम का नमस्कार है। नमस्कार जी। सिन्हा जी को भी नमस्कार है सर। नमस्कार सर। सिन्हा सर, मेरा एक प्रश्न ये है सर कि जैसे विश्लेषक बताते हैं कि फंडामेंटली कंपनी का स्ट्रांग हो तो उसमें निवेश करना चाहिए। तो हालिया दिन की मैं एक उदाहरण दूं सर, एक कंपनी का वित्त वर्ष 2022-23 में 100% का दूसरे तिमाही में मुनाफा हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने 15 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने इन्वेस्टर को। इसके बावजूद एक हफ्ते के दौरान सर उस कंपनी के शेयर में 15% गिरावट आ गई। सिर्फ मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि जो कार्यक्रम की मर्यादा है। दूसरा ये सर कि हमें क्या विश्व व्यापार में पाकिस्तान से और श्रीलंका से बासमती और चाय पत्ती के उत्पाद में प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है? अगर करना पड़ रहा है तो सरकार की ओर से इसके लिए क्या सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद सर। जो आपका पहला प्रश्न है कि एक कंपनी ने एक डिविडेंड डिक्लेयर किया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी डिक्लेयर किया, आपको ये देखना होगा कि उनका मुनाफा किस वजह से बढ़ा था। कई बार ऐसा होता है कि वन टाइम प्रॉफिट आता है जिसकी वजह से एक खास तिमाही में बहुत ज्यादा मुनाफा देखने को मिलता है। तो अगर वो एक वन टाइम इनकम की वजह से बढ़ा है तो फिर उस कंपनी के लिए आगे चल करके बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहने वाली। हाँ, यदि एक कंसिस्टेंट है, एक नियमित दर पर उसमें बढ़ोतरी हो रही तो वो अच्छा है। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं ना कि छोटी छोटी बढ़ोतरी हो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि एक बार में बड़ी बढ़ोतरी हो और उसके बाद उसमें बढ़ोतरी देखने को ना मिले। तो फंडामेंटल अगर मजबूत है तो आगे चल करके बढ़ोतरी नियमित तौर पर होने की संभावना बनी रहती है। तो एक वजह शायद ये हो सकती है कि उन्होंने उस कंपनी ने जो भी डिक्लेयर किया था वो शायद वन टाइम इनकम होगा और उसकी वजह से आगे चल करके जब बाजार ने समझा कि आगे इसकी मुनाफे में और ज्यादा बढ़ोतरी के अनुमान नहीं है या इस कंपनी के फंडामेंटल उतने स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने उसमें सेल ऑफ किया होगा। दूसरा प्रश्न जो आपका बासमती और चाय को लेकर के है, मुझे लगता है कि चाय के मामले में हमें मुकाबला बहुत ज्यादा कठिन हमारे लिए हो चुका है और न केवल आप अगर श्रीलंका की बात करें, बाकी कई और भी ऐसे देश हैं जिनके साथ मुकाबला काफी डिफिकल्ट हो चुका है। अब मुझे लगता है कि चाय के मामले में सरकार के पास जो विकल्प है वो तो आजमा रहे हैं कि ग्लोबली हम अपने जिसे कहा जाए कि अपनी मार्केटिंग हम कितने बेहतर कर सकते हैं। बासमती को लेकर के ये बात जरूर है कि बासमती के मामले में कई और देश है जहां पर हमें मुकाबला मिल रहा है। बासमती में थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है, अगर आप बीते दिनों देखें तो बासमती का निर्यात जो है वो काफी बढ़ा है। हाँ, अभी भी ये कहा जाए तो कंपटीशन काफी वहां पर तगड़ा है। और दिल्ली से हमारे श्रोता धीरज लाइन पे हैं। धीरज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि सर जो गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड इशू करती है उनमें फ्लक्चुएशन किस आधार पे होता है और पिछले कुछ समय से ये डाउन ही जा रहे हैं, इसकी कोई खास वजह है और ये कब तक ऊपर आने की उम्मीद है या ये और ओवरऑल ये इन्वेस्टमेंट कितना बेहतरीन है प्रॉफिट के हिसाब से? जी अगर मैं इनका प्रश्न समझ पाए तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड देखिए आपके लिए दो एडवांटेज देता है। एक तो ये है कि 8 साल का इसमें इन्वेस्टमेंट है, 5 साल का लॉक इन होता है, 5 साल के बाद आप इसको बेच सकते हैं और उसके 5 साल
में अगर आप बेच रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन देना होता है, 8 साल में आप कर रहे हो तो कैपिटल गेन आपको नहीं देना होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपको हर साल 2.5% का इसमें आपको ब्याज मिलता है, और जब आप इसको मैच्योरिटी पे जाते हैं तो उस समय जो बाजार में कीमत होती है वो कीमत आपको मिलती है। सुरक्षा इसमें यह है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो उसकी सिक्योरिटी को लेकर के इश्यू होता है, यहां पर आपको इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपके डीमैट अकाउंट में आ चुका होता है। मेरे हिसाब से ये एक बेहतर विकल्प है। रहा सवाल जहां तक कीमत में कमी आने का, तो देखिए सोना हो सकता है कि 1 साल 2 साल में थोड़ा सा आपको कमजोर होता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर 5 साल 7 साल का, अगर आप 8 साल का टाइम होराइजन लेकर के चलेंगे तो आपके सोने की कीमत में बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी। अब ये कितना तेजी से आगे बढ़ेगा या क्या होगा, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी के समय में अगर मैं देखूं कि अगर फेडरल रिजर्व की जो भी चाल रहेगी वो काफी हद तक सोने की कीमतों को प्रभावित करेगी, तो अगला साल जो है 2023 जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, और उसके दूसरे हाफ में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी कीमतों में आप सुधार आएगा या नहीं ये कहना भी मुश्किल है। And Shishir, the rates also fluctuate because of the date of the payment, that extra 2.5%. As long as the 2.5% is not paid, the rates are high. The moment that is paid, it comes down again. So that also causes some fluctuation. 2.5% is the interest. The actual payment which you will get at the end of 5 year or at the end of 8 year is actually the price which is prevailing in the market. Correct. So that price is totally different. And the second thing, when you're talking about the prices, it depends upon the daily. Because it's a tradable instrument. So how the market behaves, what kind of demand is there, what kind of supply is there, so what kind of prices of gold is there, that determines the prices of sovereign gold bond in the secondary market. But from the investor point of view, the important thing is the 5 year and the 8 year. When you are going to redeem it, you will get the price what is the prevalent during at that time in the market. Right. Let's look at the U.S. market now. On Wall Street, key indices ended higher yesterday in a choppy trading session as gains in defensive shares overshadowed energy declines, and investors shrugged off hawkish comments from Federal Reserve officials about interest rate hikes. Federal Reserve Bank of Boston leader Susan Collins said that with little evidence price pressures were waning, the Fed may need to deliver another 75 basis point rate hike as it seeks to get inflation under control. On Thursday, St. Louis Fed President James Bullard set off equity declines when he said the Fed needs to keep raising interest rates given that its tightening so far had only limited effect on observed inflation. So the Dow Jones Industrial Average rose 199 points or 0.6% to close at 33,746. The S&P 500 added 19 points or 0.5% to end at 3,965, and the Nasdaq Composite ended flat at 11,146. And possibly the last caller for today, Jitendra for Jaipur. Please ask your question quickly. हाँ क्विकली। हाँ सर, मैं आपसे आईपीओ के बारे में पूछूंगा 5-6 पॉइंट पे। इस बार प्रमोटर के बारे में बताइए कि इसको कैसे चेक करें, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स पर जाके डायरेक्टर का नाम डाल के, या कोई और भी तरीका है? थैंक यू। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी आईपीओ में या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में पैसा लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ड्राफ्ट हियरिंग जो प्रॉस्पेक्टस होता है वो देखना चाहिए, और उसमें रिस्क फैक्टर पे देखना चाहिए। रिस्क फैक्टर में प्रमोटर, कंपनी और इंडस्ट्री तीनों के बारे में जानकारी होती है। उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी में निवेश करना जो है वो बेहतर है या नहीं। दूसरी चीज आपको देखनी चाहिए कि उन्होंने जो प्राइस बैंड रखा है वो प्राइस बैंड कितना गुना ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा आपको प्राइस बैंड दिख रहा है तो आपको उस कंपनी में निवेश करने से बचना चाहिए। एक रीजनेबल लेवल पे हो तो आपको जाना चाहिए। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शिशिर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। Shishir, thank you so much for joining us live in the studio. It's always a pleasure to have the expert live in the studio. It gives a different feel to the program, and our listeners also enjoy it. And thank you to all the listeners who called and asked questions, and the questions are very insightful, as I'm sure you would agree. Before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines that we covered. Government withdraws export duty on steel with immediate effect. Brent crude futures tanks 9% during the week. And on Wall Street, the Dow rises 0.6% as investors shrugged off hawkish comments from Federal Reserve. That's all that we have in this edition of Market Mantra, but we'll be back again tomorrow at 6:30 p.m. And tomorrow is the Mutual Fund edition, so don't forget to tune in. Namaskar. Market Mantra.